Hello everybody, so let's get started with Sumbul's reading. Happy Monday, and let's see what energies are coming Sumbul's way. We already have a 3 of Swords at the back of the deck. ये card मैंने charge करके रखा हुआ था, and I have not seen that this deck ever since. Just made a high video, and यहाँ पे चलिए देखते हैं कि क्या है. So let's tap into her energy and let's see. God's guardian angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for. Could be the reason of the 3 of Swords that she is feeling in her heart. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Sumbul, for all her fans, for the highest good of everybody. Thank you for the guidance coming for Sumbul for this week. What are the predictions? What are the energy coming her way? Thank you so much for the guidance coming in. Thank you. And thank you. And thank you so very much. On this note, I just remember that I will pull the theme card at the moment. क्योंकि याद आ गया है, तो why not pull it and then move forward, right? Okay. God's guardian angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Sumbul, for her fans. Thank you so much for the guidance coming for Sumbul for this week. Thank you, and thank you so very much. All right. Soulmate. Okay, so there is something related with the soulmate, and interestingly enough, guys, I was just picking up the weekly guidance. Growth उल्टा है, यानी कि सोलमेट से आप बोल सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड देयर इज समथिंग दैट इज राइडिंग हाई ऑन हर माइंड. एंड व्हाई? बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ स्टैग्नेशन है वहां पे. सुम्बुल के रिलेशनशिप इज समथिंग दैट इज टेकिंग प्रायोरिटी फॉर हर दिस वीक. व्हाई? बिकॉज देयर इज समथिंग जो कि ग्रो नहीं हो रहा है, स्टैग्नेंट हो गया. तो इस तरह का कुछ वाइब्स आ रहा है हमको. एंड ऑन दैट नोट, लेट मी शो यू कि मेरे वीकली गाइडेंस का जो थीम कार्ड है जो मैं निकालती थी दिस वीक, आई जस्ट फेल्ट ड्रॉन टू स्टार्ट द वीकली गाइडेंस दैट आई डू ऑन माय फेसबुक पेज. तो उसका जो गाइडेंस है सोलमेट इन रिवर्स है. ओके, एंड यू कैन सी दैट हाउ वी हैव गॉट द सोलमेट हियर ऑल्सो. तो सुम्बुल, व्हाट सुम्बुल इज गोइंग थ्रू इज समथिंग दैट द होल कलेक्टिव इज प्रोबेबली गोइंग. आप भी ग्रो थ्रू कर सकते हैं, एंड अदर्स आर ऑल्सो गोइंग, एंड द सुम्बुल इज ऑल्सो गोइंग, going with, she's also tapping into the same universal theme for this week. Excuse me. यानी कि कुछ grow नहीं हो रहा है वहां पे, ठीक है? So if you want to read this message that I will be posting on my Facebook page, I will put the link. You can go and watch, tap in there. तो एक चीज जो आपको इससे समझनी चाहिए, जो सुम्बुल अपने रिलेशनशिप के शी इज गोइंग थ्रू अप्स एंड डाउन्स इन द रिलेशनशिप. 3 of Swords को मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया था. So definitely there is an intense energy, but one thing is it's not personal to her. Collective is feeling this. With the collective card, soulmate उल्टा आया है. और एक चीज आपको यहाँ पे और समझनी चाहिए, और वो ये है कि there is some soul lesson that this person is trying to teach you. Okay? और at the surface level हमें लग सकता है कि चीजें इस इंसान के साथ ग्रो नहीं कर रही हैं, स्टैग्नेट हो गई हैं, बट हमारे हार्ट चक्रा का कार्ड जो आपने देखा था 3 of Swords पियर्स्ड था. बट वाई इज दिस पर्सन शोइंग अप इन आवर एनर्जी फील्ड? क्योंकि वहां पे कुछ सोल लेसन वो आपको सिखाना चाह रहा है. इंटरेस्टिंगली इनफ, हम अपने हीलिंग सेशन में आज वी वर हीलिंग आवर रिलेशनशिप विद द पर्सन वी हेट द मोस्ट, and we got very interesting cards, but that is again something different. So let's continue over here. तो ये चीज मैं आपको दिखाना चाहती थी. Why? So that you can understand the intensity of the energy of what? Of relationship that you might be feeling this week. Okay? All right. So with that, let's get started. Yeah, I will take a moment. चलिए शुरू करते हैं. Thank you, dear angels, for the guidance coming for Sumbul for this week. Okay, we'll start with this. Empress, Emperor, 3 of Wands, and the Magician का card, and back of the deck में 6 of Pentacles है, because she is carrying some baggage यहाँ पे. Okay, कोई चीज है, excess responsibility वो कैरी कर रही है, ढो रही है.
शी इज एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ बैलेंस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई एम गेटिंग. और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एम्परर है, यहाँ पे मैजिशियन है, दोनों मेजर अरकाना का कार्ड है एंड दोनों ही आर्ट टाइप्स है. आर्ट टाइप्स का मतलब क्या हुआ, एक तरह की पर्सनालिटी में आप टैप इन कर रहे हैं. यहाँ पे क्या है, हालांकि आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट दैट दिस वाज रिवर्स, आई हैव नेवर फेल्ट दैट, बट मुझे लगा कि जैसे मैंने निकाला तो ये कार्ड रिवर्स था. तो अगर हम यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी देखें और यहाँ पे एम्परर देखें या एम्परर इन रिवर्स भी देखें, बिकॉज दैट इज हाउ आई सॉ द कार्ड कमिंग इन, और यहाँ पे हम मैजिशियन की चीज देखें, तो यहाँ पे क्वाइट पॉसिबली शी इज स्टार्टिंग द वीक कि विद द इंटेंशन या फिर विद दिस काइंड ऑफ यू नो फीलिंग समथिंग लाइक 3 ऑफ वॉन्ड्स, माने कि कुछ किसी चीज के लिए रेडी है जाने के लिए. आई मीन शी इज रेडी और शी इज रादर वेटिंग फॉर द शिप टू कम, या फिर किसी का इंतजार कर करके थक गई है, उस तरह की एनर्जी है. और यहां पे डेफिनेटली वो अपने मैजिशियन एनर्जी में टैप इन कर रही है. एक्चुअली यू नो व्हाट, इफ यू कैन सी द कार्ड्स, थोड़ा सा अगर यहां पे देखिए, ये वाला कार्ड रिवर्स में है ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, यानी कि किसी चीज का इंतजार है. किस चीज का इंतजार है, किसी तरह के बैलेंस का इंतजार है. किस चीज के बैलेंस का इंतजार है पर हो नहीं रहा है. इट्स बीन लाइक वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम. सो शी कैन फील दिस टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द वीक, या फिर इस वीक वो काफी एक बेचैनी फील कर सकती है. किसी चीज का इंतजार है. किस चीज का इंतजार है, किसी चीज के बैलेंस का इंतजार है. किस चीज में बैलेंस चाहिए, एब्सोल्युटली, जिसका मैंने प्रिफेस आपको पहले ही दे दिया, इंट्रोडक्शन यूनिवर्स ने दे दिया, सोलमेट रिलेशनशिप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट है एंड सोलमेट इज ऑलवेज अबाउट पर्टेन्स टू योर रिलेशनशिप. तो किसी तरह के रिलेशनशिप में बैलेंस की उम्मीद कर रही है बट वो हो नहीं रहा है. ठीक है, तो एक तरह की वो एनर्जी है, स्टक एनर्जी है. और यहाँ पे ये भी है कि शी इज नॉट एबल टू सी दिस कमिंग एनी टाइम सून, इस तरह का भी एनर्जी है. बट अगेन यहाँ पे एक मैजिशियन की एनर्जी है, जो कि वो यहाँ पे कंफ्यूज और हताशा की तरफ जो वो बढ़ रही थी मिडल ऑफ द वीक में, बाउंस बैक कर रही है अपने पूरे पावर में वंस अगेन. तो ये हमको पता चल रहा है. फोकस ज्यादातर यही लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप है जो ग्रो नहीं कर पा रहा है, इंतजार है, हताशा हो रही है, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है डिले के कारण. एंड शी इज एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ बैलेंस इन दिस एरिया ऑफ हर लाइफ, विच शी इज वेरी होपफुल कि वो होगा, क्योंकि एम्परर वो है जो कि एक लॉन्ग टर्म चीजों पे फोकस करता है. तो ऐसा नहीं है कि शी वॉन्ट्स दिस टुडे, उसे कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए. शी इज रेडी इनफ टू बी पेशेंट लाइक अ एम्परर, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में इस पर्सपेक्टिव, इस रिलेशनशिप के, अब ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, वाई शुड आई इवन पुट माई नेम इन टू इट, बट वो एक लॉन्ग टर्म वे में इस रिलेशनशिप को देखती है कि लॉन्ग टर्म में इट्स गोइंग टू बी समथिंग दैट विल कम फुल सर्कल. बट वो इंतजार कर करके भी थक गई है. एंड शी इज लाइक, व्हेन इज दिस गोइंग टू हैपन, व्हेन विल दिस बैलेंस बी रिस्टोर्ड. रिलेशनशिप थीम क्या है, सोलमेट है, तो ज्यादातर हर एनर्जी हम सोलमेट की तरफ देख रहे हैं जाते हुए. And while she is positive about it, thinking long terms, but she is also kind of getting that frustration वाली एनर्जी, हल्का सा बोल सकते हैं, या डिले हो रहा है, तो कब तक इस तरह की एनर्जी देख रहे हैं. ठीक है, ऑल राइट. तो ये एनर्जी आप देख सकते हैं. कैसे देख रहे हो, ग्रोथ उल्टा आया है, यहाँ पे वेट कर करके थक गए हैं, यहाँ पे आंखें बंद हैं कि कब होगा, वो सब चीजें. So what is that one thing that Sumbul can probably take care of? Procrastination हो रहा है यहाँ पे. Now is the time to jump on a goal instead of putting it off. Taking action will attract success. And I think she is taking some action यहाँ पे, है ना. यहाँ पे अगर वो वेट कर करके, किसी का इंतजार कर करके, आंखें बंद करके इंतजार करना, होप करना, विजुअलाइजेशन करना, वो चीज करके थक गई है, यहाँ पे उसे बोला जा रहा है कि मे बी शी शुड स्टेप फॉरवर्ड एंड डू व्हाट इज नीडेड टू डू. किसी तरह का डर है उसको आगे बढ़ने में. तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि सरेंडर योर फियर दैट यू हैव व्हेन यू थिंक अबाउट टेकिंग दिस एक्शन. समझ में आ रहा है ना आपको.
All right. Guidance coming for Sumbul for this week. Make a decision. Wow. Do you see how thunderous is this? किसी चीज के मैटर में काफी कंफ्यूज है, इसीलिए कंसल्ट एक्सपर्ट भी बोला जा रहा है। और यहाँ पे वही चीज है कि आगे बढ़े नहीं बढ़े, वेट कर रही है शायद किसी के आने का, या फिर उससे भी है कि वेट करे, छोड़ दे, आगे बढ़े, खुद बात करे। आगे बढ़ती है तो प्रोकेस्टिनेट कर जाती है क्योंकि फिर उसे किसी तरह का फियर आ जाता है। बट शी इज इन दिस फेज वेयर वो आंख बंद करके वो ज्यादा दिन नहीं रह सकती है। शी नीड्स टू टेक सम एक्शन। समझ रहे हो ना? तो उस तरह क्यों एक्शन करना है? क्योंकि ये जो बैगेज हम किसी चीज का कैरी कर रहे हैं, बहुत दिन से कैरी कर रहे हैं, एंड यहाँ पे देर इज अ नीड ऑफ सम बैलेंस बीइंग गिवन टू यू। वो बैलेंस चाह रही है, तो वो वेट भी कर रही है, फिर उसको लगता है कि मुझे ही कुछ एक्शन लेना चाहिए। और यहाँ पे वो आई थिंक ये वाली जो एनर्जी देख रहे हैं ना आप, मैजिशियन की एनर्जी है, इज अ एनर्जी वेयर यू टेक कंट्रोल इन योर हैंड ऑफ क्रिएटिंग समथिंग। तो क्वाइट पॉसिबली जो उसको बोला जा रहा है कि प्रोकेस्टिनेशन को सरेंडर करो, समहाउ शी नो। एंड क्योंकि डिसीजन करना जरूरी हो गया है। क्यों जरूरी हो गया है? क्योंकि भार बहुत ज्यादा हो गया है किसी चीज का। किस चीज का? सोलमेट का, रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप ज्यादा फोकस लग रहा है इस बार। क्यों? क्योंकि थीम है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हर चीज एक्सप्लेन कर दिया मैंने। सो यू वोंट कम एंड टेल मी कि ओ व्हाई दिस दैट। सो यहां पे मुझे लग रहा है कि शी इज टेकिंग सम डिसीजन, सम कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। मे बी एक्शन ले रही है, बात कर रही है, कुछ कर रही है, इस पता चल जा रहा है। ठीक है ना? एक मैं आपको क्लैरिफायर यहां पे मैजिशियन का दे देती हूं ताकि आपको पता चल जाए कि वो किस चीज में मैजिशियन वाली एनर्जी अपनी एक्सप्रेस कर रही है। ऑल राइट, फूल्स जर्नी। तो वो कुछ फूल्स की जर्नी स्टार्ट करना चाह रही है, प्रोकेस्टिनेट भी कर रही है, डिसीजन भी करना है कि नो, इट्स हाई टाइम टू गेट स्टार्टेड विथ समथिंग। बट ये फूल, ये एज यू नो दिस इज अ बिफोर टैरो, यानी कि वो जर्नी स्टार्ट होने के पहले का फेज है। कोई भी चीज आप नया स्टार्ट करने चाह रहे हो, ऑब्वियसली डज इट मेक सेंस, क्योंकि अभी उसने जर्नी स्टार्ट नहीं की है, इसीलिए ये डिसीजन मेकिंग के फेज में है वो अपने। तो क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग का फेज है, तो डिसीजन मेकिंग के फेज में हम अक्सर प्रोकेस्टिनेट भी करते हैं कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डर भी है। बट यहां पे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज को अवॉइड कर रही थी ना, वो डर रही थी डिसीजन लेने का, आगे बढ़ने का, उस जगह पे वो कुछ आगे बढ़ के डिसीजन लेके आगे बढ़ रही है। सो लुक्स लाइक अ ग्रेट वीक फॉर हर गाइस। सन का कार्ड उल्टा है, तो रोशनी आ रही है, आ रहा है, मैंने कि क्लैरिटी आएगा, नहीं आएगा, डिसीजन लेंगे, क्लैरिटी आने के बाद डिसीजन लेंगे, कि डिसीजन लेने के बाद क्लैरिटी आएगी। यू नो द सेम थिंग, वेदर द एग केम फर्स्ट और द hen केम फर्स्ट, वो वाली चीजें हैं। But anyways, this is your guidance coming for Sumbul for this week, and I hope that this helps you guys, and I will see you. By the way, this is not for this week, this is for the whole of 30th of April tak. Thank you for watching, and I will see you again. Take care. Bye for now.